Chapter 8 revision. Next topic is acceleration. बेटा एक्सीलरेशन को हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वी कैन से change in velocity with respect to time. Is called acceleration. Means suppose when we are traveling, हम जब travel करते हैं, so we change the speed or direction when we move. So velocity changes, and if velocity changes then it causes acceleration. तो उसको हम क्या बोलते हैं? acceleration कहते हैं. Okay, so acceleration is rate of change of velocity. Now so we can say acceleration is change in velocity upon time taken. The symbol of acceleration is a, and change in velocity is v minus u upon t. So this is the formula for acceleration. A equals to v minus u by t, where v is final velocity and u is initial velocity. And t is time, and a unit of acceleration is SI unit of acceleration is meter per second square. So unit is meter per second square. Now acceleration can be of two types: positive acceleration and negative acceleration. Positive acceleration क्या होता है? When the change in velocity is in the direction of motion. Means मोशन के डायरेक्शन में ही चेंज इन वेलोसिटी होता है. इट मीन्स जब वेलोसिटी क्या हो? इंक्रीज हो. शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कह सकते हैं? जब वेलोसिटी इंक्रीज हो, 0 से 10, 10 से 15, 20, 25, वेलोसिटी इंक्रीजेज, देन इट इज़ पॉजिटिव. एंड व्हेन द चेंज इन वेलोसिटी इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और जब चेंज इन वेलोसिटी जो है वो अपोजिट है मोशन के, तब हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी डिक्रीजेस. अपोजिट मीन्स सब एग्जाम्पल लाइक ब्रेक्स आर अप्लाइड. ब्रेक्स अप्लाइड है, देन वी विल से दैट here retardation is there. So negative acceleration is also called retardation. Okay, any doubt here? No ma'am. Then No ma'am. okay, next is फिर uniform acceleration and non-uniform acceleration. Uniform acceleration is when the change in velocity is uniform
और by equal amounts in equal intervals of time. जब वेलोसिटी में जो चेंज होता है जैसे 0, 2, 4 इक्वल है, equal, then it is uniform. And when the change in velocity is by unequal amounts, like 0, 4, फिर 5, फिर 10 हो गया, फिर 20 हो गया, मीन्स इट इज़ नॉट इक्वल, इट इज़ अनइक्वल, तब हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. Then acceleration is shown by, acceleration is always shown on VT graph. एक्सेलरेशन हमेशा VT ग्राफ पर शो होता है. तो वेलोसिटी टाइम, इफ वी आर हैविंग अ स्ट्रेट लाइन देन इट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेल. बट याद रखना एक्सेलरेशन इज ऑलवेज obtained on VT graph, and if we are having a curve on VT graph, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज, if we are having a curve then it is non-uniform. Okay, any doubt here? Done? Yes ma'am. Okay, clear everyone? हाँ, तो कौन VT ग्राफ में आप रेस्ट नहीं बोलोगे, इस बात को अच्छी तरह से. दिस इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एंड दिस इज एट रेस्ट. ओके, क्लियर एवरीवन? समझ में आई बात? Yes ma'am. चलो, नेगेटिव इज दिस, अगर हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है, with the increase in time, if the velocity decreases then it is negative acceleration or retardation. Clear? Okay, equations of motion. So we are having three equations. One is v equals to u plus at, second is s equals to ut plus half at square, and the third is 2as equals to v square minus u square. जहाँ पर इन टर्म्स के अपने अपने मीनिंग है. v का मीनिंग क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, चाहे वो रेस्ट है तो फाइनल वेलोसिटी आप अपने आप न्यूमेरिकल्स में ज़ीरो लोगे, इस बात का याद रखना. u इज़ इनिशियल वेलोसिटी, जब स्टार्ट होता है मोशन. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हम कहते हैं एन ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट, देन यू विल टेक इनिशियल वेलोसिटी एज ज़ीरो. या अगर कभी कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप किया जाता है तो भी आप क्या लेते हैं? u इक्वल्स टू ज़ीरो. a इज़ एक्सेलरेशन, t is time, and s is distance. These are the terms which are related in this. So we only in our course we are having equations of motion by graphical method. हाँ जी बोलो बच्चे. Yes. किसकी? ut की किसकी? हाँ, तो u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड t इज टाइम. अलग अलग देखो बेटा, ut एक साथ नहीं आएगा, ठीक है. u अलग है, t अलग है, बस दे आर मल्टीप्लाइड, दैट्स इट. जैसे a s, ठीक है, s इज डिस्टेंस और a इज एक्सेलरेशन, ठीक है. ओके, हाँ.
नाउ फर्स्ट इक्वेशन के लिए ग्राफ वी विल बी हैविंग दिस टाइप। ग्राफ जो बनेगा वो तीनों इक्वेशंस के लिए एक ही ग्राफ है। दिस इज द ग्राफ। वाई एक्सिस पर हमेशा वेलोसिटी लेंगे एंड एक्स एक्सिस पर आप हमेशा टाइम लेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सपोज द ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट ए। So A point तक we are having the velocity u. At point A the velocity changes, and if the velocity is changing then it reaches to B, but change in velocity is known as acceleration. So A से लेकर B तक का जो पाथ है that is acceleration. So यहाँ पर हमारी जर्नी स्टॉप हो गई। So यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देंगे। So this is time, इसका नाम है c। तो द होल वेलोसिटी इज v, फाइनल वेलोसिटी, एंड OC तक जो भी टाइम है वो हम लेंगे t। यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे जैसे मैथ्स में भी हम करते हैं, एंड वी विल मेक इट डिवाइडेड दिस फिगर इनटू टू पार्ट, वन इज ट्राइंगल एंड द अदर इज रेक्टेंगल, एंड नेम इट एज d। सो दिस इज द ग्राफ। सो अगर ये कंप्लीट, इफ वी नो दैट हेयर we know that OA equals to U, so OA is equals to CD, तो this is also U because दोनों आपस में equal हैं। so we know OA equals to CD equals to U, then AB is A, acceleration। so we have BC, जो BD है, BD can be written as BC minus CT, तो BD will be BC, complete BC is V and CD is U, so BD can be written as V minus U। तो ये जो BD है, only BD is V minus U, ठीक है। इज इट क्लियर एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है? अब आपको इक्वेशंस डिराइव करने के लिए थोड़ा बहुत लर्न करना पड़ेगा। दैट फर्स्ट इक्वेशन जो है, फॉर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको सिर्फ एक ऊपर वाला ट्राइंगल लेना है। इन बातों को आपको याद रखना है। यू हैव टू टेक ओनली ट्राइंगल। तो ट्राइंगल नेम इज इन ट्राइंगल ए डी एंड बी, दिस ट्राइंगल ए डी बी। एंड जो आपको अभी मैंने ग्राफ में फॉर्मूला बताया था, स्लोप acceleration, slope is acceleration, so slope equals to perpendicular upon base। हाँ जी बोलो बेटा, बोलो बोलो। अच्छा, फॉर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सो स्लोप इज AB, परपेंडिकुलर इज BD, एंड आप फिगर देखते रहना, एंड बेस इज AD। नाउ पुट द वैल्यूज। AB का वैल्यू वी विल टेक A, एंड BD वी विल टेक V माइनस U, एंड AD विल बी T। बिकॉज ये T है तो ये भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये भी T हो जाएगा। सो वी हैव V माइनस U इक्वल्स टू AT, so it is V equals to U plus AT. This is first equation of motion. Clear? Any doubt here? First equation derived. Next, second equation है हमारे पास S equals to UT plus half AT square। ग्राफ हम यही लेंगे, ग्राफ विल बी ओनली दिस। एस इज डिस्टेंस हेयर। बेटा याद रखना हमेशा, डिस्टेंस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज इन अ ग्राफ, एरिया अंडर VT ग्राफ। जो भी VT ग्राफ का एरिया होता है उसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी द डिस्टेंस ट्रैवल। तो S इक्वल्स टू एरिया अंडर VT ग्राफ। तो दिस इज
ट्रेपीजियम O A B and C. So this is area of trapezium OABC. So formula of trapezium is half sum of parallel sides into height. So parallel sides का जो है that is parallel side कौन कौन से trapezium की? What are the parallel sides? We have parallel sides OA is parallel side and BC is parallel side and height is this. This is height. ये height है, ठीक है, या ये भी हाइट हो सकते, कोई भी हाइट ले सकते हो. हाइट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. वी हैव ओ ए प्लस सी बी इंटू हाइट इज सॉरी ए डी. ओ ए की वैल्यू क्या है बेटा? Tell me the value of OA. U. हाँ, OA की वैल्यू OA is U. So OA is U. सी बी आप देखोगे ग्राफ में, सी बी इज वी एंड ए डी यू विल सी इज टी. ओके, क्लियर? ओके, Yes, ma'am. नाउ इट इज इसको आप v प्लस यू लिख सकते हो इंटू टी. कैन यू राइट? अब इस v कोई जगह आप u प्लस ए टी पुट कर दो, इस v की जगह फर्स्ट इक्वेशन यूज करके. ओके, इस v की जगह आप u प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन ये पुट कर दिया. नाउ सॉल्व करो. u प्लस यू कितना होता है? 2u. और ये t जो है वो मैं इधर ले आई बाहर, यहाँ आगे ले आई. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? बेटा आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट? मैंने क्या किया, इस v की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? u प्लस ए टी पुट कर दिया. ये u और ये u मिलके क्या बना दिया? 2u. अब मैं मल्टीप्लाई करूँगी, हाफ टी इंटू ओपन ब्रैकेट कर रही हूँ प्लस फिर से हाफ टी इंटू ए टी. 2 से 2 कैंसिल, आई विल गेट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. hence derived. Any doubt? Done? Done बच्चे. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ये थोड़ा मिलता जुलता है, सेकेंड इक्वेशन से ही है. स्टार्टिंग सेकेंड इक्वेशन की तरह ही होगी. डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल्स टू, डिस्टेंस ट्रैवल हमें कैसे बताना है? एरिया ऑफ वी टी ग्राफ. अभी हमने किया एरिया ऑफ वी टी ग्राफ इज एरिया ऑफ ट्रैपीजियम, जो ट्रैपीजियम है ओ ए बी सी. फॉर्मूला हमने लगाना है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. पैरेलल साइड्स आर ओ ए एंड सी बी एंड हाइट इज ए डी. यहाँ तक हमने बिल्कुल ऐसे ही किया है, ओ ए प्लस सी बी इंटू ए डी. अब ध्यान से देखना, वैल्यूज़ पुट करेंगे बिल्कुल जैसे पहले किया हुआ है, u प्लस वी और ए डी की वैल्यू t.
जो हमारी बेटा u प्लस वी है इसको मैं v प्लस यू लिख। अब ध्यान से देखना, थर्ड इक्वेशन में कहीं पर भी t नहीं है। अगर t नहीं है तो हम t को एलिमिनेट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि t हमें चाहिए ही नहीं। सो वी नो, वी हैव अ फॉर्मूला a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। इस t को उधर ले जाओ और a को इधर ले आओ, तो t की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, v माइनस यू अपॉन a। t की वैल्यू पुट की हमने। नाउ वी विल गेट a प्लस बी a माइनस बी, 2 इंटू ए 2a। यहाँ तक किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम?